सबसे पहले परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट. परफेक्ट कंपटीशन. ये मार्केट जहां पे ऑल गुड्स आर होमोजीनियस इन एवरी रिस्पेक्ट. शेप, साइज, टेस्ट, color, everything is same. They are perfect substitute of each other. Whenever you say they are perfect substitute, I mean cross elasticity is infinite. Perfect substitutes have cross elasticity, infinite elasticity. उसके बाद any firm can easily enter into market or they can exit from the market. If existing firms are earning supernormal profit, the new firms will enter into market easily without any government intervention. Or if the existing firms are making losses, the existing firms can leave the market without any intervention. So free exit, free entry. We assume that there is no distribution cost or selling cost because everyone is selling same product, so no need to advertise as such. अगर कुछ अलग होगा तो आप एडवर्टाइज करोगे, अगर सबके पास वही चीज मिलने वाली है, no need to advertise. Even we also assume that all the firms are located at a equidistance from your market, or they are located in the market, or they are equidistance. So transport cost अगर होगी तो सबके लिए सेम रहेगी, yeah, it will be nil. So even transport cost will not change the final price of the product. समझ में आ रहा है? So that won't have any impact. Then, so there are various features of perfect competitive market, जो like you have studied in 12th as well. So I won't go in detail. Perfect competitive firm में we assume that, this assumption is very important, whatever they have they can sell at market price. जो कुछ भी market ने price decide किया by intersection of demand and supply, उस price पे they can sell whatever they have. If they have 1 lakh units, they can sell at the same price. If they have more units, they can still sell at same price. So law of demand does not actually apply here. Law of demand में हम बोलते हैं in order to sell more you have to decrease the price. Law of demand says demand ज्यादा होगी अगर प्राइस कम रहेगी. Law of supply भी वही बोलता है, अगर प्राइस ज्यादा रहेगी तो हम ज्यादा सप्लाई करेंगे, लाइक दैट. अब जो चाहिए बोलो, दोनों लॉ एप्लीकेबल नहीं इसके लिए. इसमें प्राइस इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द मार्केट. द फर्म्स, द कॉम्पिटिटिव फर्म्स आर प्राइस टेकर. दे विल डिसाइड द आउटपुट. Yes, they will decide the output, but they cannot decide the price for their output. The price will be decided by the market. Average revenue will be decided by market. They have to accept in accordingly. जितना है उतना सेल कर सकते हैं. So, उनके केस में even if they want to sell more, the price remains same. Average revenue remains same. जब भी average revenue same रहेगा, marginal revenue also remains constant and equal to average revenue. And in that case, average revenue curve and marginal revenue curve is same. It is horizontal to right x-axis, parallel to x-axis. समझ में आ रहा है? In order to sell more, right, they are not supposed to decrease the price. That's one thing one should understand. Now, take an example. This is industry and this is firm. And again one point, firm is just a small contributory to the industry. Their output is very small as compared to right total output of the market. There are large number of buyers तो हर market में मिलेंगे and very large number of sellers as well selling homogeneous product. So if seller is not in position to impact the quantity or impact the market price. Again, this is hypothetical market that everybody knows. Suppose industry, the price, quantity demanded at that price, quantity supplied at that price. Suppose price is 1, 2, 3, 4 and 5. These are different prices. If price is 1,
quantity supplied is suppose 10, then suppose 6, 8, 6, quantity demanded, sorry, decrease हो रही है 4 and 2. On contrary, supply if price is less is very less 2, 4, 6, 8 and what 10. So I have assumed, या मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं, इसको मैं 100 बोलता हूं, 80, 60, 40, 20, बिकॉज मार्केट है तो इसमें बहुत सारे सेलर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. सो एट प्राइस 1 demand is for 100 units, however supply is just 20 units. At price 5 demand is just 20 units but supply is 100 units. The market will stable. मार्केट कहां पे मैच होगा, कोई मुझे बोलेगा? When the price is 3, बराबर, when price is 3, यहां पे मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई. अब प्राइस डिसाइड हो गई, प्राइस इज 3. नाउ every firm has to accept this price. So now firm का schedule, price, quantity demanded and supplied. Yeah, basically I should not quantity demanded, I should say only quantity supplied basically, because they can supply whatever they have. They have to accept the market price. Price is 3. Suppose they are selling 10 units. Price is 3. They are selling 20 units. Price is 3. They are selling 30 units. Price is 3. They are selling 40 units. Price is 3. They are selling 50 units. Obviously एक firm का है, obviously their output cannot be more than the industry. Clear है? So now you can say sir, as output मतलब supply increase हो रहा है, या आप बोले सर demand increase हो रही है, price change नहीं हो रही है, because इसमें price क्या रहेगी, same रहेगी. So what is my total revenue now? It is quantity sold multiplied by revenue. Price is what? Average revenue. So what is total revenue? 30, 60, 90, 120, 150. What is average revenue? Average revenue आपको दिख रहा है 333 is average revenue. What is marginal revenue? Marginal revenue change in the total revenue upon change in the output. 30 to 60, change is 30 divided by change is 10, 3. यहां पे कितना आएगा? 0 to 30 रेवेन्यू हुआ है, 0 to 30, 30 is change, क्वांटिटी 0 to 10 हुई है, बराबर, चेंज इज 10, सो आंसर इज 3. यहां पे देखो 30 चेंज है डिवाइडेड बाय 10, 3, 30 चेंज है डिवाइडेड बाय 10, 3. यहां पे भी सेम. नाउ यू कैन सी मार्जिनल रेवेन्यू इज अ कांस्टेंट, बिकॉज एवरेज रेवेन्यू अगर कांस्टेंट होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट होगा. क्लियर है? दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू. सो अब इनका टोटल रेवेन्यू कर्व कैसे रहेगा? अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा, बराबर. मार्जिनल रेवेन्यू कर्व. सो नाउ यू कैन सी देयरफॉर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू विच इज नथिंग बट देयर डिमांड कर्व, बराबर, डिमांड कर्व. सो इसको ही अगर मैं आगे लेके जाता हूं ग्राफिकली, यू कैन शो लाइक दिस. दिस इज इंडस्ट्रीज इक्विलिब्रियम. ये किसका इक्विलिब्रियम है? इंडस्ट्री. दिस इज इंडस्ट्री डिमांड कर्व, दिस इज इंडस्ट्री सप्लाई कर्व. डिमांड कर्व DD, सप्लाई कर्व SS, and you came at a price which is ₹3. प्राइस इज OP which is ₹3. यहां पे आपने डिसाइड किया प्राइस कितनी होगी? 3. क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाइड, दिस इज OQ which is equal to कितने यूनिट्स डिसाइड हुए? 60. क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाइड कितने? 60. सो दिस इज द प्राइस. ये प्राइस किसको एक्सेप्ट करनी है? किसको एक्सेप्ट करनी है? फर्म्स को. एवरी फर्म इन द मार्केट विल हैव टू एक्सेप्ट द प्राइस. एंड ये बन गया आपके मार्केट, आपके फर्म का प्राइस. ये उनकी डिमांड कर हो गई. OP is the price which is 3. They can sell 10 units. Example, they can sell 20 units. They can sell n number of units. N units. This is quantity demanded and supplied of your firm. This is your average revenue.
दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू, दिस इज योर डिमांड कर और दिस इज योर प्राइस. जो बोलना है वो बोलो. So they will take the price decided by the market and they will sell as much as possible to them. So ये equilibrium of ये market ने price decide की and accepted by the firm. So ये firm का आ गया demand कर. ये किसकी डिमांड कर आ गई? फर्म की डिमांड कर आ गई. क्लियर है? यहां तक क्लियर है? So इसे ये समझ में आना चाहिए, in case of perfect competitive firm they have only one curve, right, for both revenue as well as margin, average revenue as well as marginal revenue. कॉस्ट तो रहेगी, कॉस्ट कर्व तो यू शेप्ड ही रहेगी, नो डाउट एट ऑल. सो ये है उनकी क्या, राइट, ये उनकी है डिमांड कर्व. क्लियर है? नाउ शॉर्ट रन में क्या हो सकता है, वी हैव टू सी what are the possibilities in the short run. So in short run, a competitive firm can earn supernormal profit in the short run. So case 1 is supernormal profit. ये कब पॉसिबल है? कोई मुझे बोलेगा व्हेन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पॉसिबल है? व्हेन योर एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट. बराबर है? सो नाउ वी विल फाइंड आउट द कर्व. देखो कैसे निकालना है, बहुत सिंपल है. अभी यू नो एवरीथिंग, खाली मुझे कर्व निकालना है, ज्यादा कुछ इस पर डिस्कशन नहीं करना है. दिस इज माई क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड. बराबर? पहले हम चेक करते, हमेशा याद रखना, पहले दो कर्व चाहिए, एक मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए और मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज दिस. अब आपको पता है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ये होगी. बराबर? मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज अ पैरेलल टू, अगर ये डायग्राम है मतलब कौन सी फर्म है? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म. दिस इज प्राइजेस, रुपीज, फिर वो कॉस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. दिस इज कॉस्ट और प्राइस एज द केस में भी. ठीक है? रुपीज. मार्जिनल रेवेन्यू कर्व मिल गई. मैंने बोला मार्जिनल कॉस्ट कर्व चाहिए. मार्जिनल कॉस्ट कर्व इनिशियली डिक्रीज होगी, बाद में क्या होगी? इनिशियली डिक्रीज होगी और बाद में इंक्रीज होगी. इट विल बिकम मिनिमम. इनिशियली डिक्रीज होगी, मिनिमम होगी एंड देन इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. ये कौन सी कर्व है? मार्जिनल कॉस्ट कर्व. पहले हम इक्विलिब्रियम डिसाइड करेंगे, पहले इक्विलिब्रियम आउटपुट डिसाइड करेंगे. इक्विलिब्रियम आउटपुट की कंडीशन क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू कर्व शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. तो यहां पे पॉइंट ए है एंड पॉइंट बी है. पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. दूसरी कंडीशन थी कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व शुड कट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो. पॉइंट ए पे ये ऊपर से कट कर रही है एंड पॉइंट बी पे ये नीचे से कट कर रही है. सो आपको स्लोप जहां पे पॉजिटिव होगा मार्जिनल कॉस्ट का, वो आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा. सो मुझे बोलो पॉइंट ए पे इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा या पॉइंट बी पे इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा? बी. सो अब डिसाइड करो आपका आउटपुट क्या है. Now your output is OQ. Output decide हो गया. So your equilibrium output is OQ. समझ में आया? सबसे पहले दो कर्व्स पिक्चर में लाने की, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, एंड उससे हमें आउटपुट पता चलेगा. अगर आउटपुट पता चला तो ऑब्वियसली यू कैन इजीली फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस. अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आपको दो कर्व चाहिए, कौन से? एक एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड दूसरा चाहिए एवरेज कॉस्ट कर्व. इसमें एवरेज रेवेन्यू कर्व है क्या? यस. मार्जिनल रेवेन्यू इटसेल्फ इज योर एवरेज रेवेन्यू. सो यही कर्व क्या है आपकी? कौन सी कर्व है बोलो? राइट, दिस कर्व इटसेल्फ इज योर एवरेज रेवेन्यू कर्व, हॉरिजॉन्टल. नाउ व्हाट इज माय एवरेज कॉस्ट कर्व? एट दिस आउटपुट, OQ आउटपुट, एट दिस आउटपुट माय रेवेन्यू इज, कोई मुझे रेवेन्यू बोलेगा? रेवेन्यू कितना है? रेवेन्यू कर्व से नीचे देखो, माय रेवेन्यू मैं यहां पे लिख रहा हूं
एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू, कोई मुझे बोलेगा BQ, माई एवरेज रेवेन्यू इज BQ, या मैं इसको P लिखता हूं, और राइट वन कैन से इट इज इक्वल टू OP. My price, if I produce OQ output, I will get OP per unit, बराबर, और BQ per unit. यहां तक क्लियर है. दूसरा मुझे चाहिए, क्या चाहिए, एवरेज कॉस्ट. अब एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए मुझे एवरेज कॉस्ट कर्व लाके आना पड़ेगा. एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड, बराबर. नाउ आई हैव टू ब्रिंग इन एवरेज कॉस्ट कर्व. सो नाउ दिस इज एवरेज कॉस्ट कर्व. मेक श्योर वन थिंग कि जहां पे मिनिमम रहेगी एवरेज कॉस्ट कर्व, वहां पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व ने क्या करना चाहिए, उसको इंटरसेक्ट करना चाहिए. सो दिस इज माय एवरेज कॉस्ट कर्व. इनिशियली डिक्रीज होगी, मिनिमम होगी, जहां पे मिनिमम होगा वहां से मार्जिनल कॉस्ट चली जाएगी, एंड देन इट विल इंक्रीज. सो AC is my what, average cost curve. To produce OQ output, what is my cost per unit? OQ output के लिए cost कितनी है आपको. Now this is another point. This is suppose C. So what is my cost? Average cost is CQ. Cost के नीचे आ जाओ उस output पे, समझ में आ रहा है, CQ. Are you getting me? Now let's see. This is point D on rupees axis. So now I have my average revenue, I have my average cost, which is nothing but CQ, or I can say OD, बराबर. What is my total revenue? कोई मुझे बोलेगा what is my total revenue? Sir, total revenue is average revenue multiplied by quantity. What is average revenue? Sir, BQ. What is quantity? Sir, OQ. So BQ multiply by OQ. BQ मतलब ये वाला, बराबर. BQ मतलब ये, multiply by OQ, quantity. So it is total revenue is area of rectangle. Area of rectangle. Can I say OPBQ? OPBQ, ये वाला एरिया OPBQ, बराबर. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज माय टोटल कॉस्ट? सर, टोटल कॉस्ट इज एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी. व्हाट इज योर एवरेज कॉस्ट? सर, CQ इज माय एवरेज कॉस्ट, एंड व्हाट इज माय क्वांटिटी? OQ, बराबर. सो कोई मुझे एरिया बोलेगा, व्हाट इज द एरिया? एरिया इज ODCQ. ये वाला एरिया, ये वाला एरिया इसके नीचे, बराबर. सो विच एरिया इज ग्रेटर, रेवेन्यू वाला या कॉस्ट वाला? मतलब प्रॉफिट, क्या ये प्रॉफिट रहेगा? देयरफॉर प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. सो इट इज एरिया, टोटल रेवेन्यू का एरिया था हमारा OPBQ माइनस एरिया ODCQ. तो क्या एरिया बचेगा, कोई मुझे बोलेगा? व्हाट इज द एरिया नाउ? सो देयरफॉर टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू हाउ मच? PDCB, ये वाला. दिस इज माय प्रॉफिट. सो a perfect competitive firm can earn supernormal profit in the short run if their average revenue curve lies above average cost curve at a equilibrium output. पहले equilibrium output decide करो and then check the position of average revenue curve and average cost curve at that output. If average revenue curve is above the average cost curve at that output, you will be saying कि this firm is earning which profit? Super normal profit. So this area जो हमने शेड किया है, this area is right your profit. इसको कौन सा प्रॉफिट बोलोगे? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. सिंपल है, इक्विलिब्रियम, कोई डिफिकल्ट है इसमें? नाउ केस 2, a firm can earn even losses. Perfect competitive firm can earn losses in
शॉर्ट रन. सो कब, सो केस 2, चलो केस 2 बी. कुछ नहीं, कर्व डिसाइड करना है, बहुत सिंपल है. कोई भी फर्म उठाओ, शॉर्ट रन में तीनों प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी होता है, जीरो प्रॉफिट हो सकता है. कोई भी फर्म ले लो. लॉन्ग रन में क्या होगा ये डिसाइड करना है. सो अब केस 2 इट इज राइट, क्या बोलेंगे हम, लॉसेस. परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म इज अर्निंग लॉसेस और सफरिंग लॉसेस. ये लॉस कब होगा, कोई मुझे बोलेगा, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज. मतलब विच कर्व लाइज अबोव एट दैट आउटपुट, एवरेज कॉस्ट कर्व विल लाई अबोव. सो चलो डायग्राम करते रहो, मतलब प्रैक्टिस होगी. सो दिस इज योर प्राइस एक्सिस, कॉस्ट एक्सिस. दिस इज प्राइस और कॉस्ट, प्राइस और कॉस्ट रुपीज. दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड. परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म है तो इसकी एवरेज मार्जिनल कॉस्ट ये है. मार्जिनल रेवेन्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. पहले दो कर्व्स देखने, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट. ये है आपकी मार्जिनल कॉस्ट कर्व. पॉइंट ए, पॉइंट बी, इक्विलिब्रियम इधर पॉइंट बी, जहां पे मार्जिनल कॉस्ट क्या कर्व है, क्या है, पॉजिटिव है. सो डिसाइड हो गया सर, ओक्यू आउटपुट है, इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या है, ओक्यू. इस आउटपुट पे हमें क्या ढूंढना है, प्रॉफिट है या लॉस है ढूंढना है. सो मैंने इसको जानबूझ के थोड़ा ऊपर तक खींचा, मतलब मैं आई कैन ऑलवेज कंपेयर. ठीक है, अब प्रॉफिट है या लॉस है ये ढूंढना है. इसके लिए दो कर्व चाहिए, एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड एवरेज कॉस्ट. दिस इज नथिंग बट एवरेज रेवेन्यू कर्व. तो आपके पास पहले एवरेज रेवेन्यू कर्व है. अब क्या ढूंढना है आपको, एवरेज कॉस्ट. सो एवरेज कॉस्ट कर्व, दिस इज योर एवरेज कॉस्ट कर्व. दिस इज योर एवरेज कॉस्ट कर्व. यू कैन सी जहां पे मिनिमम है एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट को इंटरसेक्ट कर रही है. क्लियर है. नाउ दिस पॉइंट सी, ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट सी है. ठीक है. नाउ विच इज नथिंग बट, हम इसको पी बोल रहे थे और इसको डी बोल रहे थे, बराबर. लेट्स डिसाइड. मुझे बोलो व्हाट इज योर प्राइस. एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू, बोलो कितना एवरेज रेवेन्यू है. एवरेज रेवेन्यू कर्व से नीचे आ जाओ, ये वाले पॉइंट से आउटपुट तक. सो व्हाट इज योर एवरेज रेवेन्यू, बी क्यू और ओपी, बराबर. उसके बाद बोलो एवरेज कॉस्ट, बोलो एवरेज कॉस्ट क्या है, सी क्यू. कॉस्ट करके नीचे देखो, अब तो आउटपुट सी क्यू और ओ, राइट, नहीं ये, हाँ, ओडी, सी क्यू और ओडी. सो नाउ यू कैन सी द लेंथ ऑफ एवरेज कॉस्ट इज मोर देन लेंथ ऑफ योर रेवेन्यू, मतलब लॉस रहेगा. देयरफॉर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल, मैं डायरेक्टली एरिया लिखता हूं. टोटल रेवेन्यू का एरिया क्या है, कोई मुझे बोलेगा व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू का, ये वाला एरिया है. सो एरिया इज इक्वल टू, कैन आई से, ओ पी बी क्यू, रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ले एल मल्टीप्लाई बाय बी. ये फॉर्मूला रहता है एरिया फाइंड आउट करने का रेक्टेंगल का, बराबर. सो लेंथ एल इज ओ क्यू, बी इज बी क्यू या ओपी, जो बोलना है वो बोलो. सो दिस एरिया, ये जो वाला एरिया है ओ पी बी क्यू, ये क्या दिखा रहा है आपको, टोटल रेवेन्यू. व्हाट इज टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय आउटपुट. बोलो व्हाट इज एवरेज कॉस्ट, ये वाली एवरेज कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी. सो इट इज डी ओ क्यू सी. या ऊपर वैसे लिखा था ना आपने, क्या लिखा था, नहीं जैसे ये लिखा था उसको लिखता हूं, ओ डी सी क्यू, चलेगा. ओ डी सी क्यू. विच एरिया इज मोर, टोटल कॉस्ट वाला है टोटल रेवेन्यू वाला. टोटल कॉस्ट इज मोर देन टोटल रेवेन्यू, मतलब क्या रहेगा, लॉस. सो व्हाट इज योर प्रॉफिट और लॉस, टोटल लॉस इन दिस केस, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल रेवेन्यू. सो दैट कम्स ये वाला एरिया. सो व्हाट इज द आंसर, बोलो डी पी बी सी.
हो गया, एक बार समझ में आ गया तो आगे कुछ नहीं है. So now, even in a perfect competitive firm, the firms may suffer losses if their average revenue, which is actually decided by the market, is not covering their cost. देखो मार्केट प्राइस डिसाइड की है मार्केट ने, अगर आप उसमें सस्टेन करोगे नहीं करोगे आपका सवाल है. एग्जाम्पल, जियो वालों ने प्राइसेस डिक्रीज कर दी. अब सपोज आइडिया वाले सस्टेन करेंगे नहीं करेंगे, आइडिया के कॉस्ट स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा. नाउ सपोज जियो हैज डिसाइडेड द प्राइस एंड दैट इज नॉट एवरीवन हैज एक्सेप्टेड दैट प्राइस. आपको भी वो प्राइस एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. अगर ज्यादा रखोगे नो वन विल परचेज फ्रॉम यू, तो आपको वो प्राइस रखनी है. आप तभी सस्टेन करोगे जब आपकी कॉस्ट उससे कम रहेगी. अगर आपकी कॉस्ट उससे ज्यादा है, हाउ विल यू सस्टेन? तो वही तो जियो वगैरह कर रहे हैं ना, कि पेनिट्रेट कर रहे हैं बाय कीपिंग वेरी लो प्राइस. दे कैन सस्टेन. उनको पता है 2-3 साल इवन दे सफर द लॉसेस, दे हैव दैट मच कैपिटल, दैट मच इन्वेस्टमेंट, दे कैन सस्टेन. 4-5 मंथ फ्री में देने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. बट वो 4-5 मंथ में बाकी छोटे लोग मर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स, बिकॉज दे कैन नॉट बियर दैट लॉस. समझ में आ रहा है? तो वो ऐसे कर रहे हैं कि प्राइस पहले कम रख रहे हैं, लॉस भी हुआ तो उनको प्रॉब्लम नहीं है. उनको वैसे उनकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रांग है, कुछ हो नहीं सकता. तब तक बाकी लोग जो कॉम्पिटिटर है उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, या तो उनमें मर्ज हो जाएंगे या दे विल क्विट द मार्केट. दोनों में से एक होगा. एंड फिर वही है, एंड देन दे विल इंक्रीज द प्राइस. पहले ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ जियो फ्री में दिया और जो कॉम्पिटिटर्स थे ऑलमोस्ट निकाल दिया. अब वही नेक्स्ट ईयर वो दे आर कमिंग इनटू केबल मार्केट. केबल मार्केट में भी वही होने वाला है. ऑलमोस्ट 1 ईयर फ्री में सब्सक्रिप्शन देंगे. जो भी स्मॉल प्लेयर्स है या तो उनमें मर्ज हो जाएंगे या तो निकल जाएंगे, एंड देन दे विल स्टार्ट चार्जिंग द प्राइस. सो मार्केट ने प्राइस डिसाइड की है. यू शुड हैव दैट कैपेबिलिटी, या तो आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो आपको मिनिमम कॉस्ट दे. अगर वो नहीं है, यू हैव टू लीव द मार्केट. एज सिंपल एज दैट. फर्स्ट केस में यू कैन अर्निंग प्रॉफिट रियली गुड. सेकंड केस में यू आर सफरिंग द लॉसेस, या आपके पास यू कैन नॉट चेंज द प्राइस, यू हैव टू एक्सेप्ट द प्राइस. आपके पास एक ही ऑप्शन है. क्या ऑप्शन है? आपकी कॉस्ट समाओ क्या करो, रिड्यूस करो. तो ही आप क्या करोगे, सस्टेन करोगे, अदरवाइज नहीं. बहुत सिंपल है. हाँ, आप बोलोगे सर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही, वी कैन कंटिन्यू. चलो वो भी मानता हूं, बट स्टिल राइट, कितने दिन आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो आप लॉसेस में हो ना. सो इन दिस केस परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म में ये फर्म कैन नॉट डिसाइड इट्स प्राइस. आपके पास लॉस रिकवर करने के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं. या तो रेवेन्यू इंक्रीज कर दो, प्राइस इंक्रीज कर दो, समझ में आ रहा है, या दूसरा कॉस्ट रिड्यूस कर दो, बाय विच यू कैन रिड्यूस योर लॉसेस. यहां पे प्राइस के साथ छेड़छाड़ी नहीं कर सकते आप लोग, बिकॉज प्राइस इज डिसाइडेड बाय द मार्केट. सो प्राइस कर तो फिक्स्ड है, आपको जो कॉस्ट कर ऊपर है उसको समहाउ क्या करना होगा, नीचे लेके आना होगा. यू हैव टू फाइंड आउट मीन्स एंड वेज बाय विच यू कैन रिड्यूस योर कॉस्ट, देन ओनली यू कैन सर्वाइव. क्लियर है? नेक्स्ट. सो सम फर्म्स मे अर्न supernormal profit, some firms may suffer the losses, and some firms can earn normal profit. Normal profit. Normal profit कब होगा बोलो? When your average revenue curve, मतलब वो टेंजेंट है, इंटरसेक्ट वहां पे करना चाहिए. लेट्स सी क्या है. सो चलो पहले आउटपुट डिसाइड करेंगे हमेशा की तरह. दिस इज कॉस्ट और प्राइस इन रुपीज, बराबर. देन दिस इज योर क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड बाय योर फर्म. यू आर ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय योर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व विच इज कांस्टेंट, बराबर. इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है. इसके साथ कौन सी कर्व लेके आनी है? यू हैव टू ब्रिंग इन योर मार्जिनल कॉस्ट. सो जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है पॉजिटिवली, वो आपका आउटपुट डिसाइड हो गया. दिस इज पॉइंट बी. OQ इज द आउटपुट. आपने डिसाइड कर लिया OQ इज द आउटपुट, बराबर. आउटपुट कितना है? OQ. आगे OQ इज द आउटपुट. अब इस आउटपुट पे प्रॉफिट है या लॉस है, तो 2 कर्व चाहिए. बोलो कौन से? एवरेज रेवेन्यू
एवरेज कॉस्ट. दिस इज योर एवरेज कॉस्ट कर्व. समझ में आ रहा है? एवरेज रेवेन्यू ऑलरेडी आपके पास, एवरेज कॉस्ट कर्व. नाउ व्हाट इज योर एवरेज रेवेन्यू? देखो जहां पे मिनिमम है एवरेज कॉस्ट, वहां से मेरी मार्जिनल कॉस्ट पास हो रही है. सब कंडीशंस आर सैटिस्फाइड. बराबर. अब देखो व्हाट इज माय एवरेज रेवेन्यू, इसको हम बोलते थे पी. बराबर, राइट. सो व्हाट इज माय एवरेज रेवेन्यू, बी क्यू और ओपी, दोनों में से जो बोलना है बोल दो. व्हाट इज माय एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट करके नीचे देखो, इट इज बी क्यू और ओपी. यू कैन सी बोथ आर द सेम. सो माय टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू, टोटल रेवेन्यू का एरिया क्या आ रहा है, ओ पी बी क्यू. व्हाट इज माय टोटल कॉस्ट का एरिया, सेम, ओ पी बी क्यू. इज देयर टोटल रेवेन्यू, जीरो. इज देयर एनी एरिया, नो. सो व्हेन your average cost curve is a tangent to average revenue curve at a equilibrium output. कहां पे, दूसरी जगह पे टेंजेंट नहीं चाहिए. at a equilibrium output, at that point you will say there is no profit, there is no loss. ये हो गया इकोनॉमिक जीरो प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट. ये थर्ड केस है. तो कोई फर्म केस 1 में हो सकते हैं, केस 2 में हो सकते हैं, केस 3 में हो सकते हैं. एज लॉन्ग एज केस 1 एंड केस 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं. बट अगर केस 2 में, मतलब यू आर इनटू लॉसेस, यू हैव टू फाइंड आउट द वेज. समझ में आ रहा है? सो द 3 प्रोबेबिलिटीज इन शॉर्ट रन, कुछ भी हो सकता है. क्लियर है? नाउ व्हाट अबाउट लॉन्ग रन? व्हाट अबाउट लॉन्ग रन? सो नाउ लॉन्ग रन, कल मैंने इनडायरेक्टली डिस्कस किया था. लॉन्ग रन में क्या होगा, इफ केस 1 में, शॉर्ट रन केस 1, if a firm or firms, if firms are earning super normal profit in the short run. नहीं मैडम, पहले शॉर्ट रन तो सोचो, फिर लॉन्ग रन. If firms are earning supernormal profits in short run, ठीक है. Now over a period of time, the other people जो भी इंटरेस्टेड है बिजनेस करने में, ये इसमें देखो, एक बार सपोज ओनियन के प्राइस एक साल बहुत इंक्रीज हो गए, तो नेक्स्ट ईयर ऑलमोस्ट एवरी फार्मर विल गो आफ्टर ओनियन. बराबर है? एंड एक पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी. स्कैनर में एक ही क्वेश्चन है, पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी इज रिलेटेड टू विच गुड्स? आंसर है एग्रीकल्चर गुड्स. एक ही क्वेश्चन है, उसका आंसर है एग्रीकल्चर गुड्स. उसका मीनिंग क्या है? पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी मतलब अगर एक चीज बहुत हो जाती है, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर यू. ओनियंस के प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो गए, तो एवरीवन इज कल्टिवेटिंग ओनियन. इतना सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, प्राइस ही नहीं मिल रही है और कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही है. समझ में आ रहा है? मतलब इतना मार्केट में ऑलमोस्ट एवरीवन हैज प्रोड्यूस. बम्पर क्रॉप प्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट गुड. इसका मतलब होता है बहुत क्रॉप प्रोडक्शन हुआ भी अच्छा नहीं है, बिकॉज सप्लाई विल इंक्रीज एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैव इनइलास्टिक डिमांड. सो देखो क्या हो रहा है, सप्लाई बहुत इंक्रीज हो रहा है, समझ में आ रहा है, प्राइजेस ड्रास्टिकली चेंज हो रही है, प्राइस बहुत कम चेंज हो रही है, बट डिमांड उतने से इंक्रीज नहीं हो रही है. प्राइस सप्लाई बहुत है, बम्पर क्रॉप प्रोडक्शन है, सप्लाई बहुत है इसलिए प्राइसेस डिक्रीज हुई, बिकॉज इन इलास्टिक है तो डिमांड उतने से चेंज नहीं होगी. प्राइस बहुत कम है, डिमांड उतनी की उतनी है, द फार्मर्स विल नॉट रिकवर देयर कॉस्ट एंड दे विल सफर लॉसेस. सो ये फिनोमिनन एप्लीकेबल होता है वो कमोडिटीज के लिए जिनकी इनइलास्टिक डिमांड है, एंड राइट
उनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है देन द रिक्वायर्ड। इनके केस में आप बोलोगे फार्मर्स क्यों गरीब है या क्यों पुअर है, उसके पीछे ये कंसेप्ट है। आप बोलोगे करो ना जितना आउटपुट करने, अरे ज्यादा आउटपुट करने से उनका प्रोडक्ट जो है उसकी इनइलास्टिक डिमांड है, ज्यादा करने से भी प्रॉब्लम है, कम करने से भी प्रॉब्लम है। सो कहां पे ना दे हैव टू मेंटेन दैट इक्विलिब्रियम, या कहां पे ना एडजस्ट करना होगा। समझ में आ रहा है? सो दैट इज paradox of the plenty that is applicable to agriculture goods, and the concept is inelastic demand for their commodities. If the firms are earning supernormal profits in the short run, now many new entrepreneurs are interested to enter into market because they are saying profit, कि अरे इस फर्म में प्रॉफिट है, इस बिजनेस में प्रॉफिट है। समझ में आ रहा है? कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है सपोज, मतलब कोई ऑटोमोबाइल्स में, कोई दूसरे सर्विस सेक्टर में, और जो कोई भी हम इंडस्ट्री ले रहे, कोई भी फर्म ले रहे, इसमें क्या हो रहा है कि दे आर अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इन दैट डायरेक्शन अब लोग सोचेंगे कि चलो इसमें प्रॉफिट है, हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर, राइट, हम भी इसमें काम करेंगे। सो इफ द फर्म्स आर अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द शॉर्ट रन, द न्यू फर्म्स विल एंटर, न्यू फर्म्स will enter into market, enter into market. New firms will enter into market and supply will increase. प्राइस चेंज नहीं होगी इनिशियली, बट सप्लाई इंक्रीज होगा, सप्लाई विल इंक्रीज, कीपिंग डिमांड सेम, डिमांड तो उतनी रहेगी, कीपिंग डिमांड कांस्टेंट और सेम। कल हमने देखा था डिमांड चेंज नहीं होगी बट सप्लाई इंक्रीज होगा। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस? इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब आपका जो रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू है, दैट विल डिक्रीज। इफ सप्लाई इंक्रीजेस, supply increases, demand remains constant, demand is constant, demand is constant, equilibrium price, equilibrium price जिसको हम बोल रहे हैं एवरेज रेवेन्यू, बिकॉज इक्विलिब्रियम प्राइस जो मार्केट डिसाइड करेगा, मार्केट में सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, मार्केट में सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, समझ में आ रहा है? मार्केट विल डिसाइड द प्राइस इन दिस केस। सो सपोज चेक एन एग्जांपल, ये लिखना मत, जस्ट डायग्राम। दिस इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस इनिशियल, सप्लाई इंक्रीज हो गया ना, डिमांड रिमेन सेम, प्राइस क्या आ गई, डिक्रीज हो गई। पहले प्राइस इतनी थी, समझ में आ रहा है? सप्लाई इंक्रीज हो गया, क्वांटिटी, बट उससे प्राइस क्या हो गई, डिक्रीज। सो प्राइस डिक्रीज हो गई, सो लिख लेना, राइट, इक्विलिब्रियम प्राइस, और वही प्राइस हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, वो हमारी क्या रहेगी, एवरेज रेवेन्यू रहेगा। इक्विलिब्रियम प्राइस विल डिक्रीज एंड इंक्रीज इन डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर एफओपी, बिकॉज बाकी लोग उनको डिमांड करेंगे ना, एवरेज कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, प्रोडक्शन विल इंक्रीज। Therefore, the gap between average revenue curve, average revenue and average cost will reduce and will become zero, that is normal profit। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। So short run से long run, it will take time, but over a period of time, जो super normal profit कमा रहे थे लोग, that will reduce and they will start earning only which profit? Normal. Case number 2. If the firms are earning or suffering losses, अब exactly उल्टा लिखना है, if firms are suffering losses in short run,
in short run. शॉर्ट रन में दे आर सफरिंग द लॉसेस. होगा चेक करना. अब क्या होगा? अब जो नए लोग वो तो आएंगे, बट द एग्जिस्टिंग हु कैन नॉट रिड्यूस देयर कॉस्ट, समझ में आ रहा है, दे हैव टू लीव द मार्केट. तो द एग्जिस्टिंग फर्म्स some of the existing firms will exit the market or leave the market. Leave the market. इससे market supply will decrease, resulting in decrease in market supply. So decrease in market supply. Keeping demand same. Keeping demand same. Demand change नहीं होगा. Market demand will remain same. Now you know, if price decrease, supply decrease होगा. कर देखना कैसे होगा. This is equilibrium demand. This is equilibrium price, equilibrium quantity, OP. सप्लाई डिक्रीज हो रहा है ना, तो राइट में शिफ्ट हो गए या लेफ्ट में हो गए? लेफ्ट में. बराबर. अब पहले प्राइस ये हुआ करती थी, अब क्या है? इट इज इंक्रीज्ड, सो प्राइस विल इंक्रीज. एवरेज रेवेन्यू because now many sellers, many producers have left the market. They are unemployed. They are ready to work for you at a lesser cost. Are you getting my point? So your cost of production will reduce. So therefore average revenue curve will go upward, and average cost curve will go downward. लॉस क्यों था? बिकॉज एवरेज कॉस्ट कर्व वाज बिलो एवरेज रेवेन्यू. ये ऊपर जाएगी, नीचे आ जाएगा, गैप क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. एंड रिजल्टिंग इन, लिख लेना, रिजल्टिंग इन राइट जीरो लॉस. सो एंड द गैप बिटवीन AC एंड एवरेज रेवेन्यू विल बिकम जीरो. इसको टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन में नहीं होगा. बिकम जीरो. ठीक है, लॉन्ग रन. देयरफॉर राइट, प्रॉफिट विल बिकम नॉर्मल प्रॉफिट. विल बिकम नॉर्मल प्रॉफिट. So even if there is a loss in the short run in perfect competitive, try to sustain, because over a period of time कोई लोग चले जाएंगे, आप वहां पे रुक के रखना, डटे रहना. बाद में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपने आप, राइट, मार्केट प्राइस विल इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल रिड्यूस, बट उतने दिन आप सस्टेन करना चाहिए. ये भी समझ लेना. समझ में आ रहा है? सो over a period of time profit will become normal profit. and case 3 पहले से नॉर्मल प्रॉफिट है, तो अच्छा है ना. कुछ मार्केट में चेंजेस होने वाले हैं क्या? नहीं, कोई आएगा भी नहीं. अब एक बार प्रॉफिट नॉर्मल हो गए, नो नीड टू लीव द मार्केट एंड नो वन विल एंटर द मार्केट. समझ में आ रहा है? सो इन लॉन्ग रन, शॉर्ट रन में कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव प्रॉफिट, जीरो प्रॉफिट, लॉस, बट इन लॉन्ग रन there is always which profit? Normal. and now मतलब ये वाली केस, can I say case 2, case 3, sorry. and now you can see you are operating at which point of AC?
कौन से पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे हो, योर ओक्यू आउटपुट कौन से पॉइंट पे एसी के आ रहा है, लोएस्ट पॉइंट. मतलब इन लॉन्ग रन perfect competitive firms in the long run will earn normal profits by utilizing their plant optimally. This output will be optimum output as well as equilibrium output. And in that case, they will be utilizing their fixed factors or the plant optimally. एक ही ऐसी फर्म होती है जो लॉन्ग रन में उनके जो कैपेसिटी है वो ऑप्टिमली यूटिलाइज करती है, प्लांट को ऑप्टिमली यूटिलाइज होता है, जो प्रोडक्शन होगा वो लोएस्ट कॉस्ट पे होगा एंड वो आपको क्या देगा, हाईएस्ट प्रॉफिट, जीरो प्रॉफिट देगा. समझ में आ रहा है, जीरो प्रॉफिट होगा. सो एक नीचे लिख लेना एंड में, द फर्म, राइट, एक सेंटेंस लिख लेना, द फर्म्स इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट will earn, the firms in perfect competitive market, firms in perfect competitive market will earn normal profit in long run and their output is optimum output, and their output is optimum output. That is, मैंने बोला था optimum output मतलब MC is equal to MR वाला नहीं, वो आउटपुट जो लोएस्ट कॉस्ट पे क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है. दैट इज लोएस्ट पॉइंट ऑन योर कॉस्ट कर्व. समझ में आ रहा है, लोएस्ट पॉइंट ऑन योर कॉस्ट कर्व. ठीक है, तो उसकी डायग्राम कैसे निकालते हैं देखो, लेट्स सी. सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें. मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई. देखो दिस इज कॉस्ट और प्राइस पर यूनिट. लॉन्ग रन में दिस इज माई मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, माई डिमांड कर्व. अब जो कॉस्ट कर लोगे वो लॉन्ग रन रहेंगे सब, बराबर. दिस इज माई लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व. शॉर्ट रन की जगह आप खाली क्या बोल दिया, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व. ये बन गया आपका आउटपुट, ओक्यू आउटपुट, इक्विलिब्रियम आउटपुट, बराबर. नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए, मतलब आपका ये आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, LAC, which is the lowest point of your LAC. इस पे आप, ये बन गया आपका लॉन्ग रन का. इसका ही मतलब ये आपकी शॉर्ट रन रहेगी SAC एंड ये आपकी ये रहेगी आपकी SMC. शॉर्ट रन देखोगे तो ये जो डायग्राम है केस 3 की ना, इसमें खाली मैंने दो कर दिए, दो और कर्व डाल दिए. कौन से, एक डाल दिया मैंने, सपोज मैं रेड से दिखा रहा हूं, एक मैंने डाल दिया यहां पे LAC और एक मैंने बोल दिया सपोज अलग वाली LMC. कुछ नहीं है, सिंपल बोलना है. इन लॉन्ग रन शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू short run average cost is equal to long run average cost is equal to price is equal to average revenue. That's it. ये कंडीशन जहां पे सेटिस्फाई होगी लॉन्ग रन में वो इक्विलिब्रियम रहेगा. शॉर्ट रन प्लस लॉन्ग रन दोनों को साथ में रख दिया. क्लियर है. सो मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, बराबर, वो वाला पॉइंट. ये मतलब लॉन्ग रन एज वेल एज शॉर्ट रन. प्राइस मीन्स एवरेज रेवेन्यू एज वेल एज मार्जिनल रेवेन्यू. बस दैट्स इट. कैसे वो होता है ये समझ में आना चाहिए. अगर सुपर प्रॉफिट है, समवन विल एंटर, प्राइस विल डिक्रीज. समझ में आ रहा है, कॉस्ट विल इंक्रीज, वाइप आउट हो जाएगा.
फिर टेंजेंट हो जाएगा। एवरेज रेवेन्यू ऊपर थी, एवरेज कॉस्ट नीचे थी, ये नीचे मूव हो गया, ऊपर मूव हो गया, टेंजेंट हो गया, प्रॉफिट चला गया। लॉन्ग रन में नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर लॉस है तो एवरेज रेवेन्यू ऊपर थी, एवरेज कॉस्ट ऊपर थी, एवरेज रेवेन्यू नीचे थी, लोग चले जाएंगे, सप्लाई विल डिक्रीज, प्राइस विल इंक्रीज एंड कॉस्ट विल डिक्रीज, फिर वो क्या हो जाएंगे, टेंजेंट हो जाएंगे, राइट। प्रॉफिट विल अगेन बिकम जीरो। लॉन्ग रन में दिस इज द पोजीशन जहां पे मार्जिनल कॉस्ट इन लॉन्ग रन एज वेल एज शॉर्ट रन इज इक्वल टू average cost in short run as well as long run, which is equal to marginal revenue in short run or long run, which is equal to price or equal to demand curve. ये वाली जो पोजीशन रहेगी आप वहां पे बोलोगे और एक सेंटेंस ऐड करना होगा कि द फर्म इज ऑप्टिमम, दे आर प्रोड्यूसिंग एट ऑप्टिमम लेवल। ये खाली याद रखना, क्लियर है। तीन प्रोबेबिलिटी समझ में आ गए। तो शॉर्ट रन में ए कॉम्पिटिटिव फर्म कैन अर्न positive profit, zero profit or losses. However, in the long run, they will be earning only normal profit, and at which capacity? Its optimum capacity, means lowest point of LSC or short run wali cost, SSC. Clear है? Are you getting me or not? Next, monopoly. इसमें एक पॉइंट है जो I will cover. ये ऑब्जेक्टिव के लिए पूछते हैं। They say हमने डिमांड कर्व समझ ली ना परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म की। व्हाट इज सप्लाई कर्व ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट? दे से लिख लेना मार्जिनल कॉस्ट ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म, above its AVC is its supply curve. Is it supply curve? क्लियर है? मतलब कैसे देखो, this is price or cost in rupees. Suppose there are various prices. Price rupees 2. This is rupees 2. This is rupees 3. This is given by various market. Market ने अलग अलग आपको प्राइजेस दिए 4 and 5 समझने के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड। मार्केट ने अगर 2 रुपीज डिसाइड किया तो ये डिमांड कर नंबर 1। अगर मार्केट ने रुपीज 3 डिसाइड किया तो डिमांड कर नंबर 2। अगर 3 है D3, अगर प्राइस 4 है तो D3, अगर प्राइस 5 पर यूनिट है तो D4। ये किसने दिया? आपने, मार्केट ने। क्लियर है? नाउ व्हाट इज द आउटपुट? मैं बोल रहा हूं व्हाट इज द आउटपुट दैट यू विल सेल एट डिफरेंट प्राइजेस। आउटपुट डिसाइड करना है तो आपको कौन सी कर्व लानी होगी? मार्जिनल कॉस्ट कर्व। सपोज दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट कर्व। दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट कर्व। सो अगर प्राइस रुपीज 2 है, मैं लिख रहा हूं यहां पे देखो, इफ प्राइस इज रुपीज 2, व्हाट इज क्वांटिटी सप्लाइड? आप कितना सप्लाई करोगे? कोई मुझे बोलेगा आपको प्राइस रुपीज 2 है, मतलब डी कौन सी कर्व देखनी? D1, D2, D3, D4, D1। एंड जहां पे मार्जिनल कॉस्ट को क्या करे? इंटरसेक्ट करे। मार्जिनल कॉस्ट को क्या करना चाहिए उसने? इंटरसेक्ट। सो व्हाट इज योर आउटपुट? Sir, OQ is the output. So if price is 2, I will supply OQ output because that is my equilibrium output. Are you getting me? यहां पे OQ output पे marginal cost is equal to marginal revenue which is 2. मार्केट ने अगर 3 रुपीज प्राइस दी है तो आपके लिए डिमांड को D2 हो जाएगी ना। एंड फिर वहां पे इक्विलिब्रियम कहां पे मिलेगा? ये वाले पॉइंट पे मिलेगा, बी पॉइंट पे। बोलो सप्लाई कितना करोगे? OQ करोगे क्या? रे नहीं, OQ1 सपोज, OQ1 बराबर ना। अगर मार्केट ने आपको प्राइस 4 दी है 4 रुपीज पर यूनिट, बोलो आपका सप्लाई कितना करोगे? क्वांटिटी कितना करोगे? OQ2 बराबर।
क्लियर है? एंड अगर मार्केट ने प्राइस 5 रुपीज पर यूनिट दी है तो ये डी आ जाएगा OQ3. Now you can see these are the prices and these are the quantity demanded and supplied. Supplied, बराबर? Firm will supply. Clear है? So as price changes, price increase हो रही है, even supply भी increase हो रहा है. So this is which curve basically? Demand supply curve. ठीक है, मतलब ये वाला पोर्शन, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या दिखा रही है आपको? सप्लाई कर्व. ये क्या दिखा रही है? सप्लाई कर्व. मैंने यहां पे बोला मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म इज योर सप्लाई कर्व, बट एक बीच में वर्ड यूज किया है अबोव एवीसी. अबोव एवीसी. सो एवीसी कर्व कैसे होगी देखो. दिस इज एवीसी. अब मैं एवीसी लेके आ रहा हूं. मैंने पहले आउटपुट वगैरह डिसाइड किया. नाउ दिस इज माई एवीसी कर्व. एवीसी बराबर. ये खुद के मिनिमम पे इंटरसेक्ट करके ऊपर जाएगी सपोज, बराबर ना. मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट मिनिमा ऑफ बोथ एवीसी एंड एसी. इफ यू रिमेंबर हम बोलते थे शुड वी प्रोड्यूस और नॉट. पहला क्वेश्चन पूछते थे वी कंपेयर आर व्हाट एवरेज रेवेन्यू विथ व्हाट एवरेज, नहीं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. सो अब देखो if I produce OQ output, if I produce OQ output, what is my average revenue and what is my average variable cost? बोलो average revenue कितना होगा? average revenue is AQ, बराबर ना. average revenue कितना है? 2 रुपीज, बराबर. and average revenue का उसके नीचे देखो ना उस आउटपुट पे, it also AQ. as long as average revenue is equal to or greater than AVC, will you produce? yes. प्रोड्यूस करोगे? yes. क्लियर है? इफ यू प्रोड्यूस OQ1 आउटपुट, रेवेन्यू कितना था रे? BQ. BQ1 वॉज द रेवेन्यू एंड व्हाट इज AVC. अब इसको कुछ तो पॉइंट देना होगा. सपोज हम इसको क्या मानते हैं? P चलेगा? yes. सो व्हाट इज योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? PQ1. ये दोनों इक्वल थे. यहां पे एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन AVC. आर यू रिकवरिंग योर वेरिएबल कॉस्ट? यस. प्रोड्यूस. आउटपुट अगर OQ2 है, व्हाट इज योर एवरेज रेवेन्यू? व्हाट इज योर एवरेज रेवेन्यू? राइट. प्राइस इज 4 ना. ये डिमांड कर्व मतलब एवरेज रेवेन्यू भी है, ये मार्जिनल रेवेन्यू भी है, दोनों काम कर रही है. सो व्हाट इज योर नाउ एवरेज रेवेन्यू? CQ2. एंड व्हाट इज योर वेरिएबल कॉस्ट? या इसके नीचे देखना होगा, दिस इज Q. सो अगेन ग्रेटर देन, अरे वो क्यों नहीं बोलना चाहिए, आई शुड गिव सम अदर नेम. आर देता हूं, ठीक है, आर. सो क्या बन जाएगा वो? RQ2. स्टिल आई एम रिकवरिंग माई वेरिएबल कॉस्ट, आई विल प्रोड्यूस, बराबर. यहां पे बोलो रेवेन्यू कितना है? 5 रुपीज, दैट इज DQ3 विच इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. सपोज इसको हमने S नाम दिया, SQ3 प्रोड्यूस. सर यहां पे सपोज एक अलग आउटपुट लेते हैं, लिखना मत बट समझने के लिए खाली. सर यहां पे भी हो रहा है ना. सर हमने अगर ये आउटपुट लिया तो क्या प्रॉब्लम है आपको? पहले तो ये प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम आउटपुट, बिकॉज यहां पे एवरेज रेवेन्यू कर्व, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज नॉट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट कर्व, बराबर. ये पॉसिबिलिटी है, यस. ये पॉसिबिलिटी है, देखो ना ये पॉसिबिलिटी है. बट इसमें अगर आप इतना आउटपुट करोगे तो पहले इक्विलिब्रियम आउटपुट नहीं है. व्हाई? बिकॉज यहां पे मार्जिनल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, बेसिकली हमें इंक्रीजिंग चाहिए, बराबर. अगेन यू कैन सी योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा रहेगी देन योर मार्जिनल रेवेन्यू और योर एवरेज रेवेन्यू. यू विल बी सफरिंग लॉसेस. सो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है. सो वी से मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, मैं क्या बोल रहा हूं? मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म अबोव, इसके आगे वाले पॉइंट्स कोई भी ले लो, ये वाला पोर्शन अबोव एवीसी इज योर सप्लाई कर्व एज वेल. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो सप्लाई कर्व अब क्या बनेगी? देयरफॉर सप्लाई कर्व इज ABCD. ये पॉइंट्स आपके क्या बना रहे? सप्लाई कर्व.
आर यू गेटिंग मी और नॉट? बहुत सिंपल है. सो ये पॉइंट्स परफेक्ट कॉम्पिटिटिव में कवर किए. फर्स्ट पॉइंट, शॉर्ट रन में क्या क्या केसेस हो सकते हैं, लॉन्ग रन में क्या होगा. लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट, ऑप्टिमम आउटपुट. एंड व्हाट इज द सप्लाई कर्व ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म? मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज ए सप्लाई कर्व, बट कौन से पॉइंट से? अबो ए वी सी. एक्चुअली यहां से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है, बट ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है. दैट इज नॉट इक्विलिब्रियम आउटपुट. तो आप कहां से लेना है? अबो एवीसी. अबो एवीसी है मतलब यू आर रिकवरिंग वेरिएबल कॉस्ट. ऑब्वियसली आप लॉस में भी होगे तो भी आप क्या करोगे? प्रोड्यूस करके सप्लाई करोगे. समझ में आ रहा है? सो सिंपल टर्म्स, मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज यूर सप्लाई कर्व. ये मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव, बाकी के लिए नहीं है. समझ में आ रहा है? एंड अगेन इट इज ओनली अबो एवीसी. सो दिस कर्व जो मैंने अभी रेड में एक दिखा रहा हूं आपको, ये वाला पोर्शन इज सप्लाई कर्व. यू कैन सी सप्लाई कर्व इज ए अपवर्ड स्लोपिंग एंड इट हैज टू. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, बराबर है. जितना ज्यादा प्राइस मिलेगी ऑब्वियसली उतना वो लोग ज्यादा सप्लाई करेंगे. दे कैन अर्न मोर एंड मोर. सिंपल है. एक तो हमारा प्राइस तो मार्केट से लेनी है और जितना पॉसिबल है उतना सेल करेंगे. अगर मार्केट आपको ज्यादा प्राइस दे रहे तो अच्छी बात है. समझ में आ रहा है? वैसे आर यू गेटिंग मी और नॉट? सो दिस इज द थर्ड पॉइंट अंडर विच योर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म. डन. नाउ शॉर्ट मोनोपोली. डू यू रियली वॉन्ट ब्रेक? बट अगर मैं अभी ब्रेक देता हूं तो फिर 8 बजे तक कोई उठेगा नहीं, बिकॉज उसमें मुझे एटलीस्ट 1 आवर 10 मिनट्स लगेंगे. मतलब 8 बजे तक चल जाएगा. ओके, टेक 5 मिनट्स ब्रेक. चलो, एक पॉइंट तो खत्म हो गया मेरा. जो मेरा टारगेट था वो मेरा खत्म हो गया. अभी मैंने बोला था फर्स्ट पार्ट में आई विल टेक परफेक्ट कॉम्पिटिशन, सेकंड पार्ट में आई विल टेक, बट जो लास्ट पॉइंट रहेगा आई विल बी टेलिंग यू हाउ एक्चुअली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है. उसमें मुझे आपका बहुत कॉन्सेंट्रेशन लगेगा, बिकॉज अब इक्विलिब्रियम आपको समझ में आया है. आप कोई भी सिचुएशन में डाल सकते हो, मुझे उसमें टेंशन नहीं है. सो लेट टेक 5 मिनट्स ब्रेक. 6:50 हुए, वी विल स्टार्ट एट 6:55. ठीक है? प्लीज कम इन टाइम. A monopoly, a simple monopoly in the short run can earn supernormal profit. Supernormal profit कब आएंगे? When average revenue curve is above average cost curve at equilibrium output. Let's see the diagram. अब इसमें in monopoly firm, in order to sell more, they have to decrease the price. समझ में आ रहा है? इनकी एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या होती है? बोलो, डिक्रीजिंग रहती है. बराबर. सो ये आ गए उनकी एवरेज रेवेन्यू कर्व. दिस इज एवरेज रेवेन्यू कर्व. बट पहले एवरेज और दूसरी होती है कौन सी? बोलो, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व. दे आर सेपरेट. जब भी आपको एवरेज रेवेन्यू कर्व या डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग मिलेगी, इसका मतलब है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म नहीं है. Clear? Are you getting my point? So this is your like monopoly firm in this case, in this example, not a perfect competitive. And you can always find marginal revenue curve lies below average revenue curve. समझ में आ रहा है? The slope is marginal revenue का curve is a like marginal revenue curve का slope is half of the slope of average revenue curve. ये हमने पहले भी उस दिन हमने डिस्कस किया था. मैंने रिलेशनशिप जब समझाई थी रेवेन्यू फंक्शन तब. अब अलग दो लाइन्स है, अलग दो कर्व्स है. पहले हमें आउटपुट डिसाइड करना है, तो मुझे कौन सी कर्व पिक्चर में लानी पड़ेगी? बोलो, आउटपुट डिसाइड करना है. मार्जिनल कर्व. कॉस्ट कर्व तो ऐसे रहेगी, कोई भी फॉर्म हो. इट इज यू शेप्ड. मार्जिनल कॉस्ट कर्व. बराबर है? कोई मुझे बोलेगा कहां पे आउटपुट मिल गया मुझे? व्हाट इज माई आउटपुट? जहां पे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड कटिंग फ्रॉम बिलो. सो सर ये वाला पॉइंट क्या है? आउटपुट वाला है. सो बोलो कितना आउटपुट?
Sir, OQ is the output that the monopolist should produce and sell. Because at this output, his marginal revenue is equal to marginal cost. He will be maximizing profit or minimizing his losses. समझ में आ रहा है? आउटपुट डिसाइड हो गया. आउटपुट के लिए MC should be equal to MR. क्लियर है? अब आउटपुट डिसाइड हो गया. अब मैं बोल रहा हूं मुझे प्रॉफिट बोलो. प्रॉफिट के लिए कौन से दो कर्व चाहिए? एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट कर्व. सो अब एवरेज कॉस्ट कर्व लाना होगा, बराबर. सो नाउ दिस इज योर एवरेज कॉस्ट कर्व. एवरेज कॉस्ट कर्व. इसके मिनिमम पॉइंट पे इट इज इंटरसेक्टेड बाय मार्जिनल कॉस्ट कर्व. फॉर दिस आउटपुट अब मुझे पॉइंट, सपोज दिस इज माई B point, this is my C point, this is my D point. क्लियर है? मैंने आउटपुट की एक लाइन ड्रॉ कर दी और जहां जहां पे वो कट कर रही है मैंने उनको एक नाम दे दिया. नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज माय एवरेज रेवेन्यू? एवरेज रेवेन्यू के लिए आपको क्या ढूंढना है? एवरेज रेवेन्यू से क्वांटिटी तक आना है. सो माय प्राइस, एवरेज रेवेन्यू से नीचे तक देखो. व्हाट इज माय प्राइस? DQ, which is nothing but OP. Can I say OP? चलेगा? So my price is OP and quantity is OQ. Price is OP and quantity is OQ. ये जो एरिया है ये मेरा टोटल रेवेन्यू एरिया है. Are you getting me? Now मैं बोल रहा हूं what is my average cost? एवरेज कॉस्ट के लिए आपको कॉस्ट कर्व से नीचे आना होगा. सो ये वाले पॉइंट से, बराबर. उस आउटपुट पे एवरेज कॉस्ट कितनी है? OQ आउटपुट पे एवरेज कॉस्ट कितनी है बोलो? CQ. और आई विल से, सपोज ये मैंने इसको नाम दे दिया X समझने के लिए. सो आई विल से XO और आई विल से OX. OX क्या कोई फर्क नहीं पड़ता. नाउ दिस एरिया XO मल्टीप्लाई बाय OQ, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय आउटपुट इज टोटल कॉस्ट. सो नाउ देयरफॉर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू एरिया. बोलो व्हाट इज टोटल रेवेन्यू? OPDQ इज माय टोटल रेवेन्यू. OPDQ. आर यू गेटिंग मी? एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी. What is my total cost? So average cost multiplied by quantity. OXCQ. OXCQ is my average. Sorry, it is my total cost. Therefore, profit. Total profit is equal to total revenue minus total cost. Area of revenue is more than area of cost. There is a profit. कोई मुझे बोलेगा? ये वाला एरिया. So it is XPDC is my total profit. Is my total profit. At a given output OQ, my average revenue DQ is more than my average cost CQ. Are you getting me? So what is my profit per unit? My profit per unit is DC or PX multiplied by quantity sold is XC or OQ is my profit. लॉजिक वही है, कुछ अलग नहीं कर रहे, खाली अब कर्व की शेप चेंज हो गई. रेवेन्यू कर्व की कर्व शेप चेंज हो गए. समझ में आ रहा है? कॉस्ट तो हमेशा वैसे रहेगा, कोई भी फर्म होने दो. आर यू गेटिंग मी और नॉट? अब इसमें प्रॉफिट है. अब बाकी फर्म्स क्या, बाकी लोग बोलेंगे यार इसमें तो बिजनेस करेंगे, प्रॉफिटेबल है. आर यू गेटिंग मी? शॉर्ट रन में द मोनोपोली फर्म इज अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. अदर्स फर्म मे बी दे आर राइट नए हो सकते हैं, कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं इसमें प्रॉफिट हो रहा है, चलो हम भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे ये वाला. कैन दे एंटर इनटू मार्केट? नो, बिकॉज देयर आर रिस्ट्रिक्शंस. सो मार्केट सप्लाई विल नॉट इंक्रीज, डिमांड रिमेन्स सेम. सो अगर शॉर्ट रन में प्रॉफिट कमा रहे हो तो देयर आर चांसेस कि लॉन्ग रन में भी आप क्या कमाओगे? प्रॉफिट कमाओगे. आर यू गेटिंग मी? यू विल अर्न इन लॉन्ग रन व्हाट? प्रॉफिट.
हम परफेक्ट कंपटीशन में क्या बोलते थे कि अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं, न्यू एंट्री हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगी, कॉस्ट इंक्रीज होगी और प्रॉफिट वाइप आउट हो जाएगा। इसमें वैसे नहीं होगा। रीजन, क्योंकि न्यू एंट्री के लिए अलाउड ही नहीं है। सो आप अकेले हो एंड यू आर एंजॉइंग प्रॉफिट्स। लॉन्ग रन में भी आप क्या कमाओगे? प्रॉफिट। आर यू गेटिंग मी? नेक्स्ट, केस बी, losses. A monopoly firm may earn losses into short run. Losses कब होंगे? When average revenue is below average cost at given equilibrium output. Clear है? तो इसमें वो दोनों डिसाइड करता है, उसकी प्राइस एज वेल एज उसकी आउटपुट। सो लॉजिक रिमेन सेम। स्टार्ट। प्राइस और कॉस्ट इन रुपीज, क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स, बराबर। एवरेज रेवेन्यू कर्व, यू नो दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू कर्व। थोड़ी मैंने स्टीपर दिखानी चाहिए। एवरेज रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व शुड बी लेस देन, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व शुड बी लेस देन एवरेज रेवेन्यू कर्व, बराबर है। जैसे ऐसे कर्व दिखते हैं तो ये परफेक्ट कंपटीशन नहीं, ये समझ में आ रहा है। हम मोनोपोली का कर रहे हैं, कर्व इज स्टीपर, एवरेज रेवेन्यू का डिमांड कर्व इज स्टीपर। क्लियर है? पहले आउटपुट डिसाइड, हमेशा पहले आउटपुट डिसाइड करना है। आउटपुट के लिए हमें क्या चाहिए? मार्जिनल कॉस्ट कर्व चाहिए। आगे मार्जिनल कॉस्ट कर्व, वो तो हमेशा सेम रहेगी। मिल गई मार्जिनल कॉस्ट कर्व। सो अब आउटपुट डिसाइड करो, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे मार्जिनल कॉस्ट पॉजिटिव रहेगी। मिल गया आपको आपका आउटपुट। OQ is your output. Equilibrium output is OQ. इस आउटपुट पे प्रॉफिट है या लॉस है ढूंढना है। तो इस आउटपुट पे आपको रेवेन्यू पता होना चाहिए और कॉस्ट। रेवेन्यू ये मिल जाएगा आपको, बराबर। रेवेन्यू ये मिल जाएगा D, बराबर। सर कॉस्ट क्या है? अब आपको कॉस्ट चाहिए तो आपको एवरेज कॉस्ट और लानी होगी। सो दिस इज योर एवरेज कॉस्ट कर्व, जो बाद में मिनिमम होके डिक्रीज होके बाद में इंक्रीज होगी। मिनिमम पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट उसको क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर है? और व्हाट इज योर एवरेज कॉस्ट, ये मैं बोल रहा हूं। OQ आउटपुट पे एवरेज कॉस्ट कितनी है? बोलो CQ। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग मी? देयरफॉर बोलो, व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू? एवरेज रेवेन्यू, रेवेन्यू कर्व से नीचे की तरफ आ जाओ। सो ये OP इज DQ और OP, DQ और OP चलेगा। व्हाट इज माई, बोलो व्हाट इज माई एवरेज कॉस्ट? बोलो CQ और X, इसको नाम दे रहे X। सो CQ और OX। समझ में आ रहा है? कॉस्ट चाहिए तो कॉस्ट कर्व के नीचे आओ, रेवेन्यू चाहिए रेवेन्यू कर्व के नीचे आओ। समझ में आ रहा है? आगे नाउ देयरफॉर टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू इज OP मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी OQ, ये वाला एरिया चाहिए आपको। सो इट इज इक्वल टू OPDQ। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू OPDQ। टोटल कॉस्ट चाहिए सर, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय आउटपुट। सो ये वाला एरिया आपका क्या रहेगा? टोटल कॉस्ट। सो कैन आई से इज इक्वल टू OXCQ। विच एरिया इज मोर? कॉस्ट एरिया इज मोर, देयरफॉर टोटल लॉस। सो इट इज टोटल लॉस XPDC। XPDC। Are you getting my point? Clear है? So, in short run, if monopolist may incur losses, कब incur करेगा? When he is not in position to recover his cost. अब उसको क्या करना होगा? उसके पास दोनों ऑप्शन है।
उसके पास दोनों ऑप्शन है, ही मे इंक्रीज हिज प्राइस, वो ही कैन चेंज द प्राइस, वो प्राइस इंक्रीज कर सकता है, एवरेज रेवेन्यू इंक्रीज कर सकता है, और दूसरा है ही हैज टू डिक्रीज द कॉस्ट। उसके पास दोनों ऑप्शन है। परफेक्ट कंपटीशन में वो प्राइस चेंज करने का ऑप्शन नहीं था। समझ में आ रहा है? बिकॉज प्राइस यू आर एक्सेप्टेड, आपको कॉस्ट रिड्यूस करना यही ऑप्शन था, अदरवाइज लीव द मार्केट। समझ में आ रहा है? इसमें आपके पास दोनों ऑप्शन है, प्राइस इंक्रीज करो एंड कॉस्ट डिक्रीज करो। वही तो कर रहे हैं रेलवे वाले, दे आर इनटू लॉसेस। वो तो मार्केट से बाहर तो नहीं जाएंगे, बराबर? वो क्या करते? दे इंक्रीज द फेयर चार्जेस। समझ में आ रहा है? फेयर क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। वो बोलते हैं हमारी कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही है, इसलिए वो चार्जेस इंक्रीज कर रहे हैं। या एग्जाम्पल दूसरा और आप नेसेसिटी के तौर पे ले सकते हो, एग्जाम्पल लाइक ये पीएमटी हुआ, या फिर जो विच इज नेसेसिटी, एक्चुअली दे आर नॉट मोनोपोली, बट यू कैन कंसिडरिंग कि वो नेसेसिटी है एंड दे आर इनटू लॉसेस। तो वो कैसे ट्राई करते हैं लॉसेस रिकवर करने के लिए? दे कॉस्ट तो उनकी ऑलमोस्ट उतनी है, या तो इंक्रीज होगी, डिक्रीज तो नहीं होगी। दे ट्राई टू इंक्रीज द प्राइस। आर यू गेटिंग मी? सो दे आर टू ऑप्शंस, या तो प्राइस डिक्रीज करो या तो रेवेन्यू क्या करो? इंक्रीज। चार्ज मोर प्राइस टू द कस्टमर्स। हाँ, उसमें थोड़ा चांसेस है कि यू मे लूज द कस्टमर वगैरह थोड़ा फार, वो आपको somehow you have to manage and you have to wipe out the losses। एंड अगर आपने प्राइस इंक्रीज की फिर भी लॉसेस रिकवर नहीं हो रहे, यू ट्राई टू रिड्यूस द प्राइस फिर भी लॉसेस रिकवर नहीं हो रहे, लॉन्ग रन में यू आर इनटू लॉसेस। अगर कोई मोनोपोली फर्म लॉन्ग रन में भी लॉसेस में है, दे शुड लीव द मार्केट। दे शुड बोल रहा हूं मैं, दे शुड लीव द मार्केट। सो मोनोपोली फर्म लॉन्ग रन में प्रॉफिट में होगी तो अच्छी बात है, अगर लॉसेस में है दे आर नॉट इन पोजिशन, और लॉन्ग रन में एवरी कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट, they are not in position to recover their variable cost, their total cost, they should leave the market। समझ में आ रहा है? सो परफेक्ट कंपटीशन में मैंने बोला शॉर्ट रन में क्या है? एबनॉर्मल प्रॉफिट है, लॉन्ग रन में नॉर्मल हो जाएंगे। शॉर्ट रन में लॉसेस है, लॉन्ग रन में नॉर्मल हो जाएंगे। इसमें वैसे नहीं, इसमें अगर शॉर्ट रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, लॉन्ग रन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट रहेंगे। शॉर्ट रन में लॉसेस है, ट्राई टू मिनिमाइज द लॉसेस, एटलीस्ट जीरो प्रॉफिट तो करना ट्राई करना, मेक राइट एबनॉर्मल प्रॉफिट के लिए ट्राई करना। योर टू ऑप्शंस, इंक्रीज द प्राइस, डिक्रीज द कॉस्ट, समहाउ मैनेज इट, कुछ तो जुगाड़ करो, समहाउ मेक कि प्रॉफिट बना रहे, प्रॉफिट बने। अगर नहीं हो रहा है, लीव द मार्केट। आर यू गेटिंग मी? एंड थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? नॉर्मल प्रॉफिट। सी, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब दे मस्ट बी टेंजेंट, राइट ना? सो एवरेज कॉस्ट कर्व एंड रेवेन्यू कर्व शुड बी इक्वल एट दैट आउटपुट, बराबर? सो अब डायग्राम निकालेंगे। स्टीपर होनी चाहिए एवरेज रेवेन्यू कर्व। दिस इज एवरेज रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। It means marginal revenue curve should be also downward sloping and less than that, बराबर? आउटपुट डिसाइड करना है, आउटपुट के लिए MC should be equal to MR, so MC curve, MC curve. So you have your output now. Sir, the monopolist will produce OQ output. डिसाइड हो गया OQ आउटपुट? दो कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे, MC एंड MR आर इक्वल एंड MC इज अ पॉजिटिव एट दिस पॉइंट। हम इस पॉइंट को बोलते थे विच पॉइंट? सपोज दैट पॉइंट इज B। हर जगह पे मैंने B नाम दिया, यस B, ठीक है? अब मैं एक बार आउटपुट डिसाइड हो गया, यस। अब प्राइस एंड रेवेन्यू डिसाइड करना, प्राइस एंड मतलब रेवेन्यू एंड कॉस्ट डिसाइड करनी है। सो इसको मैं थोड़ा ऊपर तक खींचता हूं, ठीक है? नाउ व्हाट इज योर रेवेन्यू बोलो? सो रेवेन्यू कर्व से नीचे आ जाओ। सो दिस पॉइंट शुड बी D। रेवेन्यू कर्व पे जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट D है सपोज। सो व्हाट इज योर
रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू कितना हो गया बोलो, डी क्यू विच इज इक्वल टू ओपी। आर यू गेटिंग मी? अगर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस रखना है तो आपको ऐसे लेके आनी होगी जो यहां पे क्या करे, टेंशन करे। सो कैन आई से लाइक दिस, दिस इज एसी कर, इसके मिनिमम पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट कर क्या हो रही है, कट हो रही है, बराबर। देन एंड यहां पे वो क्या हो रही है, इक्वल है। सो एट ओक्यू आउटपुट योर मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो इक्वल टू योर प्राइस, सॉरी एट ओक्यू आउटपुट योर एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू योर प्राइस। मैंने मार्जिनल कॉस्ट बोला, वर्डिंग गलत थी, एक्चुअली क्या है, योर एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू योर प्राइस। सो नाउ सी your average revenue is equal to, बोलो what is average revenue, DQ or OP। your average cost is equal to, बोलो DQ or OP। your total profit, sir average price that is AP multiplied by quantity, so ये area OPDQ, total cost sir वही area है OPDQ, profit is 0, area are same, area is same। लॉन्ग रन में डिपेंड्स ऑन देयर कॉस्ट फंक्शन, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, लॉस भी कमा सकते, लॉस में भी जा सकते हैं, लॉसेस में अगर रिकवर नहीं होता तो दे शुड लीव द। सो जनरली लॉन्ग रन में अगर कोई मोनोपोली है दे शुड बी इन प्रॉफिट, दे शुड बी इन या तो नॉर्मल प्रॉफिट, बट जनरली विच प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सो तीनों पॉसिबिलिटीज है। तो एक कॉमन चीज है जहां पे नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो वाले केस में योर एवरेज कॉस्ट कर्व इज ए टेंजेंट टू योर एवरेज रेवेन्यू कर्व। आई थिंक लाइक आई एम क्लियर टू यू, मैडम समझ में आ रहा है उधर। नेक्स्ट, अरे उनके चेहरे देख के लगता है वो वैसे उनको जबरदस्ती बिठा है। नेक्स्ट, क्लियर है? लॉन्ग रन बहुत सिंपल है, देखो लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में लॉसेस में नहीं हो सकते, ये मैंने आपको समझाया, नहीं तो आपको मार्केट से चला जाना होगा। आगे सो दिस इज एवरेज रेवेन्यू कर्व, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, हम इसको बोलेंगे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, खाली अब नाम चेंज कर दिया, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। क्लियर है? आउटपुट पता चल गया, ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट बी, सर आउटपुट हो गया OQ, इक्विलिब्रियम आउटपुट इज OQ। एट दिस पॉइंट, एट दिस आउटपुट, सर मेरी प्राइस है DQ, मेरी प्राइस है DQ, दिस इज माई एवरेज प्राइस, average revenue which is nothing but OP. So average revenue is equal to DQ or OP. Generally they will be earning super normal profit. मुझे अब एवरेज कॉस्ट लानी है, लॉन्ग रन में कौन सी एवरेज कॉस्ट रहेगी, LAC। सो सॉरी गलत निकाला मैंने, नीचे खींचना चाहिए ना उसको। सो रेवेन्यू से नीचे होनी चाहिए, बराबर। दिस इज LAC। इसके मिनिमम पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। सो व्हाट इज माय एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज, अब इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, C ना, CQ और इसको हम बोलेंगे X, सो OX। आर यू गेटिंग मी? सो योर इक्विलिब्रियम आउटपुट इज OQ, लॉन्ग रन का बोल रहा हूं, विच इज टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द योर मिड पॉइंट, LAC के लेफ्ट पे, मतलब आप अंडर यूटिलाइज्ड हो। सो यहां पे देखो ना, ये वाले इसमें परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में आप कहां पे आपका एक्टिविटी थी, लोएस्ट पॉइंट ऑफ LAC, मतलब लॉन्ग रन में जो प्लांट है या जो आपका आउटपुट है वो ऑप्टिमम आउटपुट है,
प्लांट ऑप्टिमल यूटिलाइज है? यहां पे लॉन्ग रन में एक्टिविटी लेवल इज नॉट ऑन द लोएस्ट पॉइंट, इट इज समवेयर ऑन डाउनवर्ड स्लोप. मीन्स लॉन्ग रन में यू आर राइट नॉट एट ए ऑप्टिमम लेवल, यू आर एट ए सब ऑप्टिमम लेवल. समझ में आ रहा है? यू आर अंडर यूटिलाइज्ड. सो इसका रीजन ये है कि स्टिल यू आर मेकिंग प्रॉफिट एंड यू आर नो कॉम्पिटिशन, सो यू आर नॉट वरीड. अब फिर भी आप कम लेवल पे काम करके भी, अंडर यूटिलाइज करके भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो. आप फुल्ली यूटिलाइज ट्राई कब करोगे? जब कंपटीशन ज्यादा है. सो यू विल गिव योर एवरीथिंग. अगर कंपटीशन है तो. अगर कंपटीशन ही नहीं है, नो नीड टू गिव एवरीथिंग, स्टिल यू कैन मेक ए लॉट ऑफ प्रॉफिट. समझ में आ रहा है? इसलिए एनी अदर फॉर्म अदर देन, मैं परफेक्ट कंपटीशन बोल रहा हूं, इन लॉन्ग रन they are never fully utilized, they are always and always under utilized. means long run average cost करके आप कहां पे ऑपरेट करते हो? लेफ्ट ऑफ द मिनिमा, दैट इज मीडियम लोएस्ट पॉइंट. आर यू गेटिंग मी? चेक करो ना, यहां पे लोएस्ट पॉइंट है और आप कहां पे? यहां पे काम कर रहे हो. सो नाउ देयरफॉर माय टोटल रेवेन्यू बोलो. व्हाट इज माय टोटल रेवेन्यू? OPDQ. OPDQ. What is my total cost? OXCQ. OXCQ. My total profit. XPDC. This is my profit. And you can see you are operating at right left of minimum point of your LAC, means you are not optimally utilizing your plants. You are producing your equilibrium quantity at sub-optimum level. So, monopolists are never ever, right, perfectly, what I will say, utilized. Fully utilized नहीं रहेंगे, वो कम लेवल पे ही काम करेंगे and still they will earn profit in the long run. Long run में losses रहेंगे तो मैंने पहले ही बोला, they have to anyhow make sure they can recover the losses, otherwise they will have to leave the market. Are you getting me? Yes? ये हो गया सिंपल मोनोपोली का. ये हो गया सिंपल मोनोपोली का. क्लियर है यहां तक? नाउ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली. इक्विलिब्रियम ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली. सिंपल मोनोपोली मतलब दे आर चार्जिंग सेम प्राइस टू ऑल कस्टमर्स, राइट, फॉर द सेम कमोडिटी. सो एग्जाम्पल के लिए सपोज आई विल टेक, सपोज एक बोंडा वाला है. बोंडा वाला पता है? बोंडा नहीं पता आपको? अरे एक आइटम होता है, फूड आइटम होता है. यू डोंट नो बोंडा? नहीं? अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. लाइक वड़ा पाव जैसे बोंडा. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड. सपोज देयर इज ओनली वन पर्सन who cooks bondas and sell. Now he has two outlets. He has two outlets, one in Deccan and another is in Camp. One is in Deccan and another is in Camp. Only two outlets. Suppose he is a monopolist. ठीक है? He is charging price per plate ₹20. Average revenue is ₹20 in Deccan per plate of bonda, and दोनों जगह पे प्राइस सेम ही है, ₹20 पर प्लेट. क्लियर है? एक प्लेट सर्व करेगा, फिर वो डेक्कन में हो या कैंप में हो, उसको कितने रुपीस मिलने वाले? 20. आर यू गेटिंग मी? बट सपोज कोई एक XYZ, तेरा नाम क्या है भाई?
दीपक, आई वाला या डबल ई वाला? आई वाला. सो Deepak is regular customer. Deepak knows the concept of elasticity and everything. एंड उस ओनर से उसका रिलेशन अच्छा है. अब वो क्या बोल रहा है? सपोज he observes that he has two outlets. He's a monopolist. He has two outlets in Pune. One is in Deccan area, another is in Camp area. And the price is constant. दोनों जगह पे same price है, ₹20, ₹20. His observation is price elasticity. In Deccan is suppose 4, and in Camp it is 10. What do you mean by price elasticity? कहां पे ज्यादा है बोलो? डेक्कन? नहीं, कैंप में प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा है. इसका मतलब हु आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स प्राइसेस, चेंज इन द प्राइसेस? कैंप. अगर प्राइस आगे पीछे होती तो हु आर मोर सेंसिटिव? कैंप वाले. इसका मतलब डेक्कन वालों को प्राइस कम ज्यादा हो गई तो इतना प्रॉब्लम है क्या? नहीं है. So as compared to between Deccan and Camp, can I say Deccan customers are inelastic, their demand is inelastic, and Camp customers are elastic, their demand is elastic. बराबर है? वो उस भोंडा वालों को समझा रहा है कि देख, प्राइस दोनों जगह पे तूने सेम लगाई है, बट नेचर ऑफ द कस्टमर इज डिफरेंट. जो डेक्कन में उनको तूने प्राइस कम ज्यादा भी की ना, इतना रिस्पांस, मतलब वो इतना क्या बोलेंगे हम उसको, अगर प्राइस इंक्रीज भी करेगा ना तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा. तो उनको समझा रहा है इलास्टिसिटी वहां पे कम है, तो वहां पे ज्यादा प्राइस रखेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे विल हैप्पीली पे. बट अगर वही तू कैंप में करेगा, ज्यादा प्राइस रखेगा, द क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल मोर देन द इंक्रीज इन द प्राइस. अब वो बोल रहा है कि वो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बात कर रहा है. वो बोलता है थोड़ा और समझ के लिए, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू नाउ? देखो, मार्जिनल रेवेन्यू की फॉर्मूला है एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय ई -1 डिवाइडेड बाय ई. वो वहां पे वो बोंडा बाजू में रख दिया उसने खाते टाइम. वो बोल रहा मैं तुझे सब गणित समझाता हूं. ये एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय E -1. देखो फिर बोलो एवरेज रेवेन्यू कितना है? 20. इलास्टिसिटी हियर इन डेक्कन इज 4 -1 डिवाइडेड बाय 4. कितना आएगा? 20 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4. कोई मुझे बोलेगा कितना आएगा ये? 15. वो बोल रहा है मार्जिनल रेवेन्यू इन डेक्कन इज ₹15. What do you mean by marginal revenue in Deccan is 15? If you serve one additional plate in Deccan, that will contribute ₹15 to your revenue. समझ में आ रहा है? यहां पे देख रहा है, देख बोलो एवरेज रेवेन्यू कितना है? 20 मल्टीप्लाई बाय 10 -1 डिवाइडेड बाय 1. 20 मल्टीप्लाई बाय 9, नहीं 10 होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 10. कोई मुझे बोलेगा 18. मार्जिनल रेवेन्यू इन कैंप इज 18. अगर वही प्लेट अगर वो कैंप में सेल करेगा, दैट प्लेट विल कंट्रीब्यूट ₹18 टुवर्ड्स योर रेवेन्यू. अब वो उसको समझा रहा है ये प्लेट है, ये प्लेट क्या बोल रहा, ठीक से ध्यान देना. अगर तू डेक्कन में बेचेगा, वो रेवेन्यू में कितना ऐड करेगा? ₹15. अगर यही प्लेट अगर तू कैंप में सेल करेगा, कितना मिलेगा तुझे? तो कहां पे वो प्लेट सेल होनी चाहिए? आप बोलोगे सर व्हाट अबाउट कॉस्ट? मोनोपोलिस्ट आई हैव अज्यूम ही हैज ए वन फैक्ट्री, एक ही जगह पे कुक होता है और वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है.
लाइक सुजाता मस्तानी वालों का पुणे में सियागढ़ रोड पे उनका पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, पुणे में हर जगह पे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। सो कॉस्ट इज सेम, तो फिर वो कॉस्ट डेक्कन के लिए हो या कैंप के लिए हो, कॉस्ट सेम ही है, तेरी कॉस्ट सेम ही है। अब वही प्लेट अगर तू डेक्कन में सर्व करेगा दैट विल इंक्रीज योर रेवेन्यू जस्ट बाय 15, बट अगर वही प्लेट कैंप में सेल करेगा दैट विल इंक्रीज योर रेवेन्यू बाय 18। अब वो बोल रहा है हाँ कुछ तो लॉजिक है इसमें। इसका मतलब क्या हो गया, इफ एक सेलर कैन डिवाइड हिज मार्केट, सब डिवाइड हिज मार्केट इन डिफरेंट मार्केट्स हैविंग डिफरेंट इलास्टिसिटीज। एक मार्केट में इलास्टिसिटी इज लेस, अनदर मार्केट में इलास्टिसिटी इज मोर, so he can divide his market, one is relatively inelastic, another is relatively elastic, in between them बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? दोनों में, दो ऑप्शंस में से जहां पे इलास्टिसिटी ज्यादा होगी वहां पे मार्जिनल रेवेन्यू भी ज्यादा होगा, और जहां पे इलास्टिसिटी कम है वहां पे मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, कम है। सो इफ ही सेल्स वन प्लेट इन लोअर इलास्टिक मार्केट that will add less to his revenue than the market where elasticity is more. So अब वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, वो अगर सेल करना है तो कहां पे सेल करेगा, कैंप में करेगा या डेक्कन में करेगा। अब जब भी वो प्लेट जा रही है वो बोल रहा है डेक्कन में नहीं कैंप में ट्रांसफर कर। सो यहां पे जो प्लेट सेल होने वाले थे कहां पे ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएंगे, कैंप में। सो ट्रांसफर ऑफ आउटपुट टू कैंप, डेक्कन से कैंप में क्या हो रहा है, आउटपुट सेल, बिकॉज ही नोज वही प्लेट यहां पे ज्यादा पैसा कमाएगी, कॉस्ट सेम ही है। सो इन ऑर्डर टू अर्न मोर रेवेन्यू, मोर प्रॉफिट, कॉस्ट इज द सेम, ही विल ट्रांसफर आउटपुट फ्रॉम डेक्कन टू कैंप। अब आउटपुट ट्रांसफर होगा तो सप्लाई भी चेंज होगा। अब मुझे बोलो क्वांटिटी सप्लाइड, बोलो डेक्कन में क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होगी, एंड कैंप में क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होगी प्राइस क्या होगी, बोलो क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो रही है तो प्राइस क्या होगी, इंक्रीज। डेक्कन में अब नंबर ऑफ प्लेट्स अवेलेबल आर लेस, हाउएवर डिमांड इज सेम, प्राइस विल इंक्रीज। अब जो प्राइस 20 रुपीज पर प्लेट थी अब वो इंक्रीज होके थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी, एंड अब कैंप में सप्लाई इज मोर, प्राइस विल डिक्रीज। हो गया डिस्क्रिमिनेट। पहले दोनों मार्केट में प्राइस क्या थी, सेम, कोई भी आउटपुट सेम है, समझ में आ रहा है, कमोडिटी सेम है, डेक्कन में भी 20 रुपीज, कैंप में भी 20 रुपीज। बाद में उसको समझ में आ गया यार अगर इलास्टिसिटी डेक्कन में कम है और कैंप में ज्यादा है, समझ में आ रहा है। सो मार्जिनल रेवेन्यू जहां पे इलास्टिसिटी ज्यादा वहां पे मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू डेक्कन से कैंप में ज्यादा है। तो इफ एक प्लेट है उसके पास, ही विल प्रेफर टू सेल इट इन कैंप रादर देन इन डेक्कन, समझ में आ रहा है। सो ही विल, वो जब कैंप डेक्कन पे प्लेट जा रहे थे उनमें से कोई प्लेट्स कहां पे ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देगा, कैंप में। जो आउटपुट डेक्कन में पास ऑन हो रहा था कहां पे पास ऑन होगा, कैंप में। सो डेक्कन में ओवरऑल सप्लाई विल डिक्रीज, प्राइस विल इंक्रीज, एंड कैंप में सप्लाई विल इंक्रीज, प्राइस विल डिक्रीज। अब डेक्कन में प्राइस विल बी मोर देन 20 एंड कैंप में प्राइस विल बी लेस देन 20। अब देखो ना बराबर हो गया। डेक्कन वालों को प्राइस से इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, देवर इन इलास्टिक एज कंपेयर टू कैंप। उनकी हम क्या बोलेंगे, जिनको प्राइस से फर्क नहीं पड़ रहा है उनको ज्यादा प्राइस लगा दो, हो गया ना डेक्कन वालों को ज्यादा प्राइस, और जिनको कैंप वालों को प्राइस से फर्क पड़ रहा था हो गई ना उनकी प्राइस कम। यू आर इंक्रीजिंग योर रेवेन्यू ओवरऑल। सो ये कब तक ट्रांसफर होगा, कोई मुझे बोलेगा ये कब तक ट्रांसफर करेगा। डेक्कन में जाने वाली प्लेट आप कैंप की तरफ ट्रांसफर करोगे, कब तक होगा, कैन एनीवन टेल मी, कब तक करोगे, जब तक दोनों प्लेट्स विल एड सेम अमाउंट टू रेवेन्यू। सपोज आज ये 15 रुपीज रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये 18 रुपीज कर रहा है,
इसकी प्राइस इंक्रीज होने से, डेक्कन में प्राइस इंक्रीज होने से बाद में इसका मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, 15 से आगे जाएगा, और इसका प्राइस डिक्रीज होने से इसका मार्जिनल रेवेन्यू जो 18 हुआ करता था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एंड लैटर पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू इन डेक्कन विल इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इन कैंप। समझ में आ रहा है? तो फिर एक लेवल के बाद उसको फर्क नहीं पड़ेगा वो प्लेट वो डेक्कन में सेल करे या कैंप में सेल करे, बट डेक्कन में वही प्लेट ज्यादा प्राइस पे सेल होगी एंड कैंप में वही प्लेट कम प्राइस पे सेल होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दोनों मार्केट में पहले सेम प्राइस हुआ करती थी, अब प्राइस अलग अलग है। कमोडिटी सेम बट यू आर चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस टू डिफरेंट कस्टमर्स। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। आई थिंक पॉइंट समझ में आया होगा। दिस इज सिंपल स्टोरी बट दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। सो जिस मार्केट में इलास्टिसिटी ज्यादा, दे आर मोर सेंसिटिव कस्टमर्स, उनको डिस्काउंट दे दो, आपका फायदा होगा। जिस मार्केट में इनइलास्टिक है, इलास्टिसिटी लेस है, वो सेंसिटिव नहीं है, उनको एक्चुअली प्राइस इंक्रीज करो, डिस्काउंट तो देना ही मत, प्राइस इंक्रीज करो, आपका फायदा होगा। मोनोपोलिस्ट वही करता है ना, मोनोपोलिस्ट वही करता है। जिनके लिए इनइलास्टिक डिमांड है उनको ज्यादा प्राइस लगाएगा, और जिनकी डिमांड इलास्टिक है उनको कम प्राइस लगाएगा। एट द एंड यू कैन फाइंड कैंप वालों की प्राइस कम है, डेक्कन वालों की प्राइस ज्यादा है। डेक्कन वाले इनइलास्टिक थे, पे मोर प्राइस, कैंप वाले इलास्टिक थे, पे लेस प्राइस। अब प्राइस 20-20 नहीं रहेगी, डेक्कन में प्राइस इज मोर देन 20, कैंप में प्राइस इज लेस देन 20। फॉर द सेम कमोडिटी यू आर डिस्क्रिमिनेटेड, and this is the way you discriminate among the buyers. but इसके लिए 3 conditions है। एक, you should be in position to divide your market। दोनों मार्केट आप कर रहे हो, दोनों में इलास्टिसिटी सेम है, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। so price is same, however elasticities are different, marginal revenue will also different। so प्रोडक्ट कहां से कहां पे ट्रांसफर होगा? जिस मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है उस मार्केट में आप प्रोडक्ट क्या करोगे? ट्रांसफर करना स्टार्ट करोगे। आउटपुट तो सेम है, सपोज 1 लाख यूनिट है, तो फिर डेक्कन में कितना और कैंप में कितना? जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है उसमें ज्यादा सेल करो, और जिसमें मार्जिनल रेवेन्यू कम है उसमें कम सेल करो। समझ में आ रहा है? 1 लाख को बाइफरगेट कर रहे हो। पहले सपोज 50,000 दोनों जगह पे था, बट आपको अब समझ में आ गया कि यहाँ पे डेक्कन से कैंप में मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है, तो 50,000 से कोई यूनिट्स यहाँ पे शिफ्ट करना स्टार्ट कर दो। कब तक करोगे? जब तक दोनों मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू सेम ना हो, तब तक प्राइस चेंज हुई होगी। पहले प्राइस सेम थी, मार्जिनल रेवेन्यू अलग अलग था, अब मार्जिनल रेवेन्यू सेम है, प्राइस अलग अलग है, हो गया डिस्क्रिमिनेशन। सिंपल मोनोपोली टू डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, दिस इज द प्रोसेस। सो विच मार्केट, कौन से मार्केट से कौन से मार्केट में ट्रांसफर करोगे? वो मार्केट में जहां पे डिमांड इज इनइलास्टिक, वहां से वो मार्केट में ट्रांसफर करोगे जहां पे डिमांड इज इलास्टिक, और वो मार्केट जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू कम है वो उस मार्केट से जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है। समझ में आ रहा है? नाउ फर्स्ट कंडीशन बोली कि ही शुड बी इन पोजीशन टू सब डिवाइड हिज मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी। समझ में आ रहा है? अलग अलग इलास्टिसिटी वाले मार्केट रहेंगे। सेकंड, ही शुड हैव कंट्रोल ओवर हिज सप्लाई, मतलब वो मोनोपोली होना चाहिए। एंड थर्ड, अब आप बोलोगे एक कोई है, अब दीपक ने ये कंसेप्ट समझाने के बाद उसने काम स्टार्ट कर दिया। क्या? जहां पे कम प्राइस है वहां से परचेस करना। अब दोनों जगह पे प्राइस कम आ गई ना, अब अलग अलग आ गई। डेक्कन में प्राइस ज्यादा है, कैंप में कम है, अब एक कैंप से परचेस करके वहां पे सेल कर रहा है कम रेट में, हो सकता है ना प्रॉफिट कमाने के लिए। दिस शुड नॉट बी पॉसिबल। मीन्स कैंप के कस्टमर्स एंड डेक्कन के कस्टमर्स शुड नॉट बी इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अगर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आना स्टार्ट हो गए तो मे बी राइट, फिर वो डिस्क्रिमिनेशन होना पॉसिबल नहीं होगा। सो 3 कंडीशंस, you should be in position to subdivide your market on the basis of elasticity. Second, you should have control over your supply. And third, the customers जो आपने सब डिवाइड किए मार्केट्स को,
दे शुड नॉट इंटरैक्ट विथ ईच अदर, मतलब उनको पता नहीं होना चाहिए, डेक्कन वालों को पता है कि कैंप में कम प्राइस में मिल रहा है तो उधर जाके खाना खाना स्टार्ट कर देंगे, या कोई लोग कैंप वाले अरे उधर ज्यादा प्राइस मिल रही ना, वो 25 रुपए लगा रहा है, हम यहाँ पे 18 से लेंगे और वहां पे 20, 21, 23 में सेल करेंगे, दे विल स्टार्ट बिजनेस। ये होना नहीं चाहिए, दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। आई थिंक समझ में आया होगा। सो लिख लेना कोई पॉइंट्स, ये जिनको लिखना है लिख सकते हैं, ये एग्जांपल। ओके सो ई आना चाहिए, ओके दिस शुड बी ई। नेक्स्ट आगे, सो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस लिख लेना प्लीज। सिंपल मोनोपोली, simple monopoly means same price in different market having different price elasticities, having different price elasticities। आप सेम प्राइस लगा रहे हो अलग अलग मार्केट में, एक्चुअली यू शुड चार्ज डिफरेंट प्राइसेस। इनइलास्टिक वालों को ज्यादा प्राइस लगानी चाहिए, इलास्टिक वालों को कम प्राइस लगानी चाहिए, बट आप वैसे नहीं कर रहे हो, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हो इनिशियली। नेक्स्ट, प्राइस इन द टू मार्केट इज सेम, प्राइस इन टू मार्केट्स इज सेम, इज सेम, however elasticities are different, elasticities are different, ये तो बेसिक कंडीशन है, इलास्टिसिटी डिफरेंट होनी चाहिए। नाउ इसका ही मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी डिफरेंट। प्राइस सेम है, इलास्टिसिटी अलग अलग है, तो मार्जिन आंसर ऑब्वियसली क्या रहेगा, अलग अलग आएगा। मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी डिफरेंट। सो इसके दो प्रोबेबिलिटीज हो गए। फिर प्राइस इलास्टिसिटी हाई, जिस मार्केट में प्राइस इलास्टिसिटी हाई है एंड एक मार्केट में प्राइस इलास्टिसिटी कम थी, प्राइस इलास्टिसिटी इज लो, इज लो, बराबर। इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा है, इसका मतलब इसमें मार्जिनल रेवेन्यू क्या रहेगा, हाई रहेगा। मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑल्सो हाई एंड इसमें मार्जिनल रेवेन्यू विल बी लेस, इज लो। वही आउटपुट फिर सेल करना कहां पे प्रॉफिटेबल है, जहां पे इलास्टिसिटी ज्यादा है। सो नाउ यू विल ट्रांसफर द आउटपुट। चलो ट्रांसफर स्टार्ट कर दो, लिख लेना। ट्रांसफर फ्रॉम मार्केट हैविंग लेस मार्जिनल रेवेन्यू टू market having more marginal revenue, simple। Are you getting me? मतलब जहां पे इलास्टिसिटी ज्यादा है वहां से, सॉरी जहां पे इनइलास्टिक है वहां से इलास्टिक में क्या करो, ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट नीचे लिख लेना, प्राइजेस इन, इससे क्या होगा, प्राइजेस इन लो इलास्टिसिटी मार्केट लो इलास्टिसिटी मार्केट मींस लो मार्जिनल रेवेन्यू मार्केट, ठीक है। अब वहां पे क्या होगा, आप वहां से प्राइस, आप आउटपुट शिफ्ट कर रहे हो ना, सप्लाई डिक्रीज होने से प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो प्राइजेस इन लो इलास्टिक मार्केट
will increase because of less supply than earlier, and price in more elastic market, that is more marginal revenue market, will decrease because of more supply than earlier. समझ में आ रहा है? पहले दोनों में सप्लाई सेम था तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता था, अब नहीं, एक जगह पे सप्लाई कम है जहां पे इनइलास्टिसिटी है, और जहां पे इलास्टिसिटी है वहां पे सप्लाई ज्यादा है. क्लियर है? दैट मीन्स ट्रांसफर विल टेक प्लेस टिल, कब तक करोगे? जब तक वो प्लेट दोनों जगह पे सेम कंट्रीब्यूशन दे. समझ में आ रहा है? ट्रांसफर विल टेक प्लेस टिल मार्जिनल रेवेन्यू इन बोथ मार्केट becomes same. Both the market having different elasticities become same. Having different elasticities become same. Therefore, last sentence, therefore price in relatively inelastic market will be more than price in relatively elastic market. हो गया price discrimination? Are you getting me or not? इक्वेशन लिख लेना, वो कल एक्सप्लेन करूंगा. इक्वेशन का कंप्लीट हो जाएगा. दैट मीन्स एट कब इक्विलिब्रियम होगा? व्हेन जो आउटपुट, टोटल आउटपुट बनेगा, वो आउटपुट दोनों मार्केट में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो सो दैट मार्जिनल रेवेन्यू in market A equal to marginal revenue in market B, which is equal to aggregate marginal revenue, and that must be equal to your marginal cost. ये वाला आउटपुट होगा. सो जो आउटपुट आप प्रोड्यूस करोगे, फैक्ट्री एक ही है, कॉस्ट फंक्शन एक ही है. समझ में आ रहा है? कॉस्ट फंक्शन एक ही है. आर यू गेटिंग मी? सो वो जो आउटपुट बनेगा दोनों मार्केट में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो तो एक मार्केट में जितना मार्जिनल रेवेन्यू मिल रहा है वही मार्जिनल रेवेन्यू सेकंड मार्केट में मिलना चाहिए. एंड ओवरऑल मार्जिनल रेवेन्यू एग्रीगेट शुड बी इक्वल टू योर मार्जिनल कॉस्ट. ये जहां पे होगा दैट विल बी आर इक्विलिब्रियम. सो कल हम जब डायग्राम करेंगे उसमें मार्केट 1, मार्केट 2 एंड एग्रीगेट मार्केट, ऐसे 3 करेंगे. आई थिंक दिस कंसेप्ट समझ में आई होगी, क्लिक हुई होगी. यस, डिस्क्रिमिनेटिंग, दिस इज डिस्क्रिमिनेटिंग. अरे मैडम, मैंने बोला वी स्टार्टेड विथ सिंपल एंड वी कन्वर्टेड सिंपल इनटू डिस्क्रिमिनेटिंग. एंड में मैंने क्या बोला? प्राइजेस आर चेंज्ड. आर यू गेटिंग मी और नॉट? अरे कैसे डिस्क्रिमिनेट करोगे ये मैं समझा रहा हूं. पहले हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे थे, बाद में हम डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट करते हैं. सो इट बिकम डिस्क्रिमिनेटिंग. सिंपल मोनोपोली में मार्केट एक ही रहेगा. यू डोंट डिस्क्रिमिनेट. डिस्क्रिमिनेट मोनोपोली में मार्केट अलग अलग रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी. जहां पे इलास्टिसिटी ज्यादा वहां पे मार्जिनल रेवेन्यू भी ज्यादा, और वहां पे सप्लाई ज्यादा करो, प्राइस कम रखो. जहां पे इनइलास्टिक डिमांड वहां पे प्राइस ज्यादा रखो, सप्लाई कम रखना. बस सप्लाई कम रखो तो अपने आप प्राइस इंक्रीज हो जाएगी. एंड एट द एंड
पहले प्राइस इक्वल होती थी, बट एंड में क्या हो जाएगा, प्राइजेस विल बी डिफरेंट बट मार्जिनल रेवेन्यू विल बी सेम. इनिशियली मार्केट्स में प्राइजेस सेम थे, मार्जिनल रेवेन्यू अलग अलग था. एंड में मार्जिनल रेवेन्यू सेम रहेगा, प्राइजेस विल डिफरेंट, एंड दैट मीन्स आई हैव डिस्क्रिमिनेटेड. आर यू गेटिंग मी? थैंक यू. ओके, कल का टाइम आई हैव टू अनाउंस, जस्ट 2 minutes.